and welcome to today's online session. In 5-year plans chapter, till now we have done the achievements as well as the goals, objectives of 5-year planning, as well as what was the development pattern government of India took over for the agriculture, because that is the primary sector. But after agriculture, the next area which needs to be developed, that was the industrial development. So a lot of emphasis was given by the 5-year plans or during the planning period for the development of industrial sector. As industrial sector is a base of any economy. Without industrial sector, economy cannot develop. But at the time of independence, when we got independent, industrial sector is that sector which manufacture the goods. That is, we get raw material from the primary of other sectors, then we manufacture, transform that input into output, and that manufactured good is known as the industrial sector. In this, the industrial sector, when we got independent, was very, very weak, because it contribute only about 1/6 of the national income, and it gives employment only to 1/10 of the labor force at that time. The reason for this was कि जो India the industrial base थी, that was narrow. There were hardly any industry, and mainly two types of industry was made, and in the few cities. Mainly industries was cotton textile and jute. That was also in Bengal and Orissa and other parts जिथे इस चीज़ की production basically इथे जिस चीज़ की agriculture production से and ਜਿਹੜੀਆਂ industries ਨੂੰ ਅਸੀਂ economy ਦਾ base ਕਹੀਦਾ ਹੈ, that is heavy tools, machinery, iron and steel, power generation, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ industry ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ there were only 2 iron and steel mills. One was in the Kolkata, another was in the Jamshedpur. So you can say कि ਜਿਹੜਾ industrial base ਸੀ ਉਹ narrow तो सी industries wise as well as area wise भी बहुत narrow ਸੀ, because cotton textile भी ज़्यादा ਉੱਥੇ ਸਨ, jute textile mills भी ਸਨ, and plus iron and steel ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ machinery ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ. That means ਸਾਡਾ industrial base ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ weak ਸੀ. ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ country ਨੂੰ there is need for the industrial base. Economists ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ as the economy grows, industrial sector ਦਾ role ज़्यादा ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ GDP share as well as employment share ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ sectors ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. Because as a country is known as a developed country, only then ਜਦੋਂ ਉਹ transit ਕਰਦੀ ਹੈ from agriculture sector to industrial sector. Because as with the passage of development, industrial sector ਦਾ share GDP ਤੇ employment ਦੇ ਵਿੱਚ agriculture sector ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. Then that economy is considered as a developed economy. So for this reason, we need a strong industrial base, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ country ਨੂੰ develop ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ. Because ਕੋਈ ਵੀ country ਉਦੋਂ ਹੀ progress ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ. ਬਿਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਟ ਬੈਲੈਂਸ ਦ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦ ਐਕਸਟਰਾ ਔਰ ਦ ਸਰਪਲਸ ਲੇਬਰ ਫਰੋਮ ਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀ. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗਿਵਸ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ਡ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ. ਉਹ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ਡ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਉਸ ਸਰਪਲਸ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਫੇਸਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ਡ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ. ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸਨ. ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜੌਬਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੇਸ. ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. Next, economy ਦੀ modernization and prosperity. ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟੂਲਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ. ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ. ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨੇ, they are considered more modern as well as they are considered more prosperous.
दैन द अदर कंट्रीज। सो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की मॉडर्नाइजेशन वो इंडस्ट्रीयल सैक्टर पर डिपेंड करती है। सेम इज़ द केस डिवेलपमेंट ऑफ अदर सैक्टर। असी गल की पिछले टॉपिक कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया गया, टैक्नीकल रिफॉर्म्स लिया गए कि ट्रैक्टर्स, कंबाइन, थ्रैशर्स, अदर टूल्स एंड इक्विपमेंट, ट्यूबवेल्स बिना इंडस्ट्री तो पॉसिबल है नहीं। जब तक इंडस्ट्री नहीं तब तक ये टूल्स बनाए नहीं जा सकते। सो उस बाकी सैक्टर्स को डिवेलप करने लिए भी यू नीड इंडस्ट्रीयल बेस। सेम इज़ द केस विद टर्शरी सैक्टर। टर्शरी सैक्टर को अगर असी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रेलवेज बनाने, ब्रिजेस बनाने, डैम्स बनाने, वी नीड मशीनरी, वी नीड इक्विपमेंट, वी नीड आयरन एंड स्टील मिल्स। सो अगर इंडस्ट्रियल बेस नहीं है तो टर्शरी सैक्टर भी डिवेल्प नहीं हो सकता। सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी as well as for the modernization in the economy, as well as to generate employment in the economy, as well as to give surplus labor and raise GDP of an economy, as well as raise production of flow and goods in the economy, we have to need a strong industrial base। और कोई भी इकोनॉमी सेल्फ रिलायंस उदों ही बन सकती है जी उहदे कोल स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीयल बेस है, वरना नहीं। सो इंडस्ट्रीयल बेस करके वी नीड कि असी इस चीज़ की डिवेलपमेंट की लोड़ सी जिन्होंने सैकेंड 5 ईयर प्लान ऑनवर्ड्स साडे इकोनॉमिस्ट ने इस चीज़ पर स्ट्रैस देना शुरू कर दिया। बिकॉज फर्स्ट प्लान ज़्यादा प्राइमरी सैक्टर के बेस सी, बट सैकेंड प्लान ऑनवर्ड्स इस चीज़ से ज़्यादा स्ट्रैस दिता गया। जदों इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट की गल हुई तो पॉलिसी मेकर्स के मन च एक क्वेश्चन सी कि असी ਜਿਹੜੀਆਂ ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है ਉਹਦਾ शेयर सरकार ਨੂੰ देइए कि प्राइवेट ਨੂੰ देइए। बिकॉज इंडस्ट्री लगाने ਲਈ एंटरप्रेन्योर ਜਿਹੜਾ है वो सरकार भी हो सकती है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। सो उस वेले ये बड़ा वड्डा क्वेश्चन सी उन्होंने माइंड, पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने तो पहला दे हैव अ फ्यू क्वेश्चनस, अदर क्वेश्चनस ऑल्सो जिन्होंने उन्होंने सोचा। बिकॉज इस प्रॉब्लम को फेस करने दे वॉन्ट कि गवर्नमेंट भी होवे ते प्राइवेट इन्वेस्टर्स नूं भी अलाउ किया जाए ताकि उस एरिए आके वो इन्वेस्टमेंट करन। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जी ट्रांसफॉर्मेशन हुई फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सैक्टर हुई, इस वेले बहुत सारे जोड़े इंडस्ट्रीयल एरियाज ने वो प्राइवेट सैक्टर कवर अप कर रहे हैं, लेकिन जोड़े बाकी एरियाज ने दैट इज अंडर द पब्लिक सैक्टर। As you have already known, कि public sector means the sector which is owned and governed by the government. So उस वेले जोड़े पॉलिसी मेकर सी गवर्नमेंट का शेयर ज़्यादा सी इस इंडस्ट्रीयल बेस्ड एज कंपेयर टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स। ये नहीं कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स नहीं उस वेले सन, इंडियन इंडस्ट्रीयल उस वेले भी एग्जिस्ट करते सी। टाटा आयरन एंड स्टील एंड मिल्स इट इज सेट अप बिफोर इंडिपेंडेंस, so that is set by the private entrepreneurs। So private entrepreneur उस वेले भी exist करते सन and they were in a capacity to create good industrial base, but कुछ reasons करके Indian policy makers ने जिहड़ा गवर्नमेंट का रोल सी उत्ते ज़्यादा स्ट्रेस देना। पहली चीज़ जिहड़ी एक इंडस्ट्री नूं लगानी बहुत ज़रूरी है that is investment capital। इंडियन इंडस्ट्रीयलिस्ट को उदों इन्ना पैसा नहीं सी कि वो पूरी कंट्री दे विच इन्वेस्ट कर सकन या उन्नियां वड्डियां इंडस्ट्री च इन्वेस्ट कर सकन जिन्नियां इंडिया की रिक्वायरमेंट सी। सो ड्यू टू दैट रीजन, ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, गवर्नमेंट ने जिहड़े पॉलिसी मेकर्स ने उन्होंने गवर्नमेंट नूं ज़्यादा पब्लिक सैक्टर लगाउण दा जिहड़ा सी उहदे विच एडअप कीता। बिकॉज इंडस्ट्रीयल स्ट्रक्चर दे विच जिहड़ियां लार्ज इंडस्ट्रीज़ ने like iron and steel, aluminium, machine tools, machinery, engineering, chemical fertilizers, Siemens, ये सारिया इंडस्ट्रीज पब्लिक सैक्टर के अंडर लगाई गई। HMT, if you remember this or you know it, HMT means Hindustan Machine and Tools, कि जिथे machines के tools बनाए जाते सी for the various other industries, right? So इस तरह गवर्नमेंट ने इन्हां चीज़ों को सेट किया ताकि जिहड़ा एक इंडस्ट्रीयल बेस है स्ट्रॉन्ग वो तैयार हो सके, जोड़े प्राइवेट इन्वेस्टर तैयार नहीं कर सकते। बिकॉज ये इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड करती हैं। सैकेंड रीजन इज
कि जे प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट चीज़ां बना भी दे, दे नीड अ मार्केट टू सेल, क्योंकि जब तक मार्केट नहीं होएगी दे विल नॉट एबल टू प्रोड्यूस और सेल दम। बस प्राइवेट इन्वेस्टर प्रॉफिट पे काम करते, तो प्रॉफिट उदों ही होएगा जो वो चीज़ मार्केट विकेगी। और इंडिया उस वेले मार्केट्स इन्नी बढ़िया नहीं सन कि वो कुछ भी बना के मार्केट सेल हो सके। आज नो डाउट इंडिया इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट इन द वर्ल्ड, बट उस वेले हालात इहो नहीं सन बिकॉज साडी इनकम सोर्सिस ही नहीं सी ते असीं चीज़ां दी डिमांड कितों करते सी। सो प्राइवेट इन्वेस्टर्स लई ये जिहड़ा इंसेंटिव सी मार्केट वाला वो उदों अवेलेबल नहीं सी, जिस करके वो ज़्यादा चीज़ां ते इन्वेस्ट नहीं कर सके, जिस करके पब्लिक सैक्टर का रोल जिहड़ा ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट रीजन इज दैट इज मोर स्ट्रेस ऑन सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। आई थिंक आपां सैकेंड वीडियो च गल कीती सी कि जदों इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स अडैप्ट किए उन्होंने ज़्यादा मिक्सड इकोनॉमी वाल गए। मिक्सड इकोनॉमी मीनस कैपिटलिस्टिक एंड मोर ऑफ सोशल सिस्टम। सोशलिस्टिक विच इज टेकन फ्रॉम द USSR कि असी जिहदे विच ज़्यादा इंडस्ट्री ज़्यादा डिसीजन मेकिंग इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो राइट उस वेले इंडस्ट्रीयल बेस बनाने लई जिहड़ियां इंडस्ट्री दीयां कमांडिंग हाइट्स सन वो सारियां पब्लिक सैक्टर नूं दित्तियां गईयां। कमांडिंग हाइट मीनस दैट इज द बेस ऑफ द इंडस्ट्रीयल जिहदा कंट्रोल सरकार नूं दिता गया, बिकॉज इन्हां इंडस्ट्रीज के कंप्लीट कंट्रोल तो बिना इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ इंडस्ट्री। जिद्दां अज भी डिफेंस, सीमेंट, कुछ कैमिकल्स, वैपन्स, पैट्रोकैमिकल्स, ये काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां अजे भी सरकार के अंडर ने, जिन्होंने सरकार ने हौली हौली डीरेगूलेट किया। सो उस वेले ते इस कमांडिंग हाइट्स नूं जिहड़ियां एक पिलर्स बनदियां ने किसी भी इकोनॉमी के इंडस्ट्रीयल बेस लई, उन्होंने सरकार ने अपने कंट्रोल च रखा ताकि जिहड़ा इकोनॉमी दे विच एक बेस डिवेलप हो सके फॉर द इंडस्ट्री। दैन अगली चीज़ सी इट वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर सोशल जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर। अज भी इंडियन रेलवे गवर्नमेंट के अंडर है ताकि हर किसी को ईजी, चीप और आराम नाल जिहड़ा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है वो अवेलेबल हो सके। सो उस वेले तो इस तो ज़्यादा जरूरत सन इंडियन इकोनॉमी दियां, एक तो लोगों को हर किसी को प्रोवाइड करना तो आम लोगों की भलाई भी करनी। सो उस करके सस्ती बिजली सिर्फ लोगों को नहीं सी चाहिए, प्राइवेट इंडस्ट्रीयलिस्ट को चाहिए सी। तो सस्ती बिजली तां ही होएगी जो उन्होंने सरकार प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि जब प्राइवेट इन्वेस्टर करेगा तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो पावर जनरेशन वॉज अंडर द गवर्नमेंट। फॉर दीज रीजनस ये सारिया जो बेसिक इंडस्ट्री सी उन्होंने सोशल जस्टिस के वेलफेयर क्रिएट करने वास्ते उन्होंने सरकार ने अपने हाथ च रखा ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर को भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस मिले जिहदे नाल वो अपनी इंडस्ट्री लगा के अगों इन्वेस्टमेंट कर सकन। क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट उत्थे करेगा जिथे रोड्स ने, जिथे चीप ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, जिथे सौखी मार्केट है, जिथे सरकार तुहानूं फायदा दे रही है, सबसिडी दे रही है, प्राइवेट इन्वेस्टर अपना पैसा उत्थे लगाएगा। सो रोड्स ना तो प्राइवेट इन्वेस्टर बनाएगा, रेलवे ना तो प्राइवेट इन्वेस्टर क्रिएट करेगा, पानी, बिजली, ये सारिया चीज़ां सरकार ने अपने हाथ च उस वेले रख के प्राइवेट इन्वेस्टर्स की एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सकन। सो क्योंकि पब्लिक सैक्टर इज़ नॉट गवर्नड फ्रॉम द प्रॉफिट, इट इज़ गवर्नड फ्रॉम द सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस। इस तो अलावा सरकार ने इन्होंने प्राइसिंग पॉलिसी भी दी। प्राइसिंग पॉलिसी का मतलब कि कुछ चीज़ां मार्केट रेट पर बेच सकते सन तो कुछ चीज़ां सरकार ने रेट फिक्स किए ताकि वो ये चीज़ां हर किसी को मिल सकन। क्योंकि जो उस वेले पैट्रोकैमिकल इंडस्ट्रीज लगियां या पेट्रोल डीजल आंदा सी मार्केट वो जिहड़ा एक सबसिडाइज रेट ते लोगों को मिलता होंदा सी। अज पेट्रोल एंड डीजल लोकल रेट ते मार्केट रेट तुहानूं मिलदा उही जो रेट मार्केट चल रहा है, प्लस उत्ते टैक्स भी लगता है। उस वेले सरकार ये पेट्रोल डीजल सबसिडाइज रेट पर देती सी कि कुछ उसकी कॉस्ट सरकार आप बेयर करती सी ताकि हर किसी को इसका अवेलेबिलिटी हो सके। बट इस ग्रैजुअली ये जो पब्लिक सैक्टर सी टिल 1990 तक आके इट फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, करप्शन, रेटिज्म, ब्यूरोक्रेसी करके ये लॉस चला गया, जिन्होंने अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने
प्राइवेटाइज करना शुरू कर दें. That we will study in the next videos, which about the performance of public sector, why government changed it. So till and next, after this, we will also do a certain part of it, that is IPR, the Industrial Policy Resolution, that we will discuss in our next video.